ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਏ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਨੀਤ ਪਿੰਜਾ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਪੁਨੀਤ, ਜੋ ਸਰਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕ? जी जरूर गौरव, मैं इतने जो लोग मेरे नाल ने उन्होंने मैं जरूर पूछूंगा कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे ने वो जो इशारा कर रहे हैं, तुम किस तरह देख रहे हो एग्जिट पोल के नतीजे जो लगातार जो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल तुम लगातार देख रहे हो, किस तरह देख रहे हो? क्योंकि अगर कांग्रेस आती है तो सीएम के उम्मीदवार जोड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे। हाँ जी, ये तो श्योर ही है भी जेकर कांग्रेस की सरकार है तो सीएम जोड़े भी अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी होंगे। तो उस तो इलावा अगर आप देखते हैं आम आदमी पार्टी का तो कुछ कह नहीं सकते हजे। उस तो बाद अकाली दे आप कह सकते सुखबीर सिंह जी बादल जी जोड़े भी मुख्य मंत्री दे ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਫਾਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਐ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਚਲਿਏ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ? ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਰੋਡ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸ ਔਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। तो गौरव ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਮਿਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 55 ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 59 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹਾਲੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਇਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੋਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚਲੋ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ 1 2 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 55 ਤੋਂ 61 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿੰਡਫਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ,
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 6600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਜੀਨੀਅਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਟਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਝਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲੀ ਕੱਟ ਆਫ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਚ ਰਹੀ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਸਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। परसों शाम तक ये सारा जड़ा सब कुछ क्लियर हो जाना। परसों 12-1 बजे दिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद खालिद जी, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ या कांग्रेस जी, इन दोनों में से किसी की सरकार आती है जो कि इनके दावे हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखो, हम अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, जैसा कि 2 सर्वे जो हैं जी वो उनको कुछ नज़दीक बता रहे हैं, जैसे 59 to 67 दे रही है सी वोटर वाला जो सर्वे है, आपने एग्जिट पोल दिखाया है। अगर उनकी सरकार आती, उनको मेजॉरिटी मिल जाती है, तो फिर डिसाइड कर आम आदमी पार्टी में भी ये डिसाइड करना कि कौन लीड करेगा सरकार को, ये बहुत मुश्किल है। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको जी। आम आदमी पार्टी का खाता यहाँ पर 2014 के इलेक्शन में खोला और 4 सीटें जो उनको मिली वो मालवे ही में मिली, और उन्होंने जो इलेक्शन भी ज़्यादातर लड़ा है, जिस जो उनका प्रभाव है वो मालवे में ज़्यादा है। जैसे कि पैनल में ये चीज़ तो एग्रीमेंट है कि माझे में तो बिल्कुल ही नहीं है, दुआबे में बहुत कम है, मालवा में उनका वो है जी। वहाँ से ही सारी लीडरशिप आनी है। अगर वहाँ से लीडरशिप आती है तो वहाँ पर 3-4 लोग हैं, उनमें से कौन सीएम बनेगा, मान बनेगा या कोई और बनेगा, उससे पहले के सीएम का फैसला करते या पार्टी जो थी उनको यूनाइट करते, क्योंकि पार्टी का निचले लेवल पे कैडर तो है ही नहीं। पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ रही है लीडरों के सिर के ऊपर। उनका जो है नीचे लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो यूनिट्स हैं वो बहुत कम है। अगर नहीं है थी भी वो दूसरी पार्टियां ले गई हैं, चाहे गांधी जी ले गए, चाहे वो छोटेपुर के साथ चले गए। बहुत मुश्किल होगा, बाहर से किसी को ला नहीं सकते जी। ये पंजाब का वोटर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि किसी भी व्यक्ति को आम आदमी पार्टी बाहर से ला करके मुख्यमंत्री थोप दे लोगों के ऊपर। वो उनके लिए भी सुसाइड होगा, पॉसिबल नहीं होगा, और आम पार्टी जनता भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आम आदमी पार्टी किसको आगे लाती है और उसका क्या तजर्बा या एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का, पॉलिसी फॉर्मेशन का, ये सब चीज़ें जो हैं वो तो 11 तारीख के बाद होगा। लेकिन ये एक बहुत ही डिफिकल्ट फैसला होगा कि आम आदमी पार्टी, मुश्किल होगा आम आदमी पार्टी के सामने। सुनील जाखर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका जी मीडिया में, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। थैंक यू दिनेश जी। सुनील जी, जो आंकड़े एग्जिट पोल के आ रहे हैं उसमें कहीं कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है तो कहीं आम आदमी पार्टी की, और ये साफ है कि टक्कर जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, जो कि एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। देखिए, जहां तक एग्जिट पोल या जो भी सर्वेज का सवाल है, मैं समझता हूं कि बिहार में जो कुछ हुआ और उसके बाद में इवन ऑन इंटरनेशनल स्केल जब अमेरिका में सारे के सारे एग्जिट पोल या जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट जो प्रेडिक्ट कर रहे थे वो सारी बातें गलत साबित हुई जी। उसके बाद
इन सारे सर्वेस के ऊपर ज्यादा महत्व ना देते हुए मैं तो इतना ही कहूंगा कि एक बात जिस पे यूनानिमिटी अक्रॉस बोर्ड, जिस पे सारे लोग सहमत हैं ने जो भी सर्वे है, कि अकाली और बीजेपी का दोनों का खात्मा पंजाब में तय है जी। और यही एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक फैक्टर है इसमें। अब किसको बढ़त मिलती है नहीं मिलती, मेरा आज भी ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिलेगी। जी, आपके मुताबिक आपका आंकड़ा क्या है, आपका आकलन क्या है, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही हैं? मेजॉरिटी का मेरा मानना है कि मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी को कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगी। सीट पे किसको कितने नंबर आते हैं, क्योंकि पंजाब के लोगों की जो भावना थी वो एक नया को एक्सपेरिमेंट करने की बजाय ट्राइड एंड टेस्टेड, और कैप्टन अमरिंदर सिंह की रहनुमाई में कांग्रेस पार्टी में उनका विश्वास था। और एक सबसे बड़ी बात ये भी थी जी कि लोग आज चाह रहे थे कि किसको वोट डाल रहे हैं। अभी जो आप पर्सनैलिटी बेस्ड बात कर रहे थे, पंजाब के लोग जैसा पंजाबी किरदार है उसमें वो एक मजबूत आदमी का, और उन्होंने अपनी कैप्टन साहब ने SYL जो फैसला लिया था टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट का, उसको चलते हुए पंजाब के लोगों का विश्वास था कि 10 साल जो भुगत लिया हमने, और मैं समझता हूँ सारे सर्वों ने इस पे मोहर भी लगा दी कि ये वोट जो है अकाली बीजेपी के 10 साल के कुशासन और रूल ऑफ लॉ को जो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। और जो अकाली पार्टी, देखिए अकाली पार्टी से हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है परंतु अकाली पार्टी का जो आप देखें, जो अकाली पार्टी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो किसी प्रिंसिपल से, किसी मुद्दों पर आधारित थी। आज वो सारी की सारी पार्टी एक सुखबीर बादल जी के हाथ में उनका एक पॉलिटिकल टूल बन के रह गई। इस बात के अगेंस्ट भी जो उनका टोटल कोलैप्स हुआ है, जिसको लिए मलूका साहब बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि किस तरह हमारा वोट शेयर 17% पे आ जाएगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जाने ना जाने गुल ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। सारे पंजाब को इस बात का एहसास था कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, और उसके ऊपर वोट पड़ा है। तो मैं समझता हूँ जब एक जिस किस्म के तानाशाही और धक्काशाही के खिलाफ वोट के जब डाला है, तो लोगों ने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, और ये जो बात बीच में कर रहे थे कि किस तरह हो सकता है, मेरा मानना है कि जो अर्बन वोट है अर्बन वोट मैं समझता हूँ एनमास बीजेपी का, जिसको बीजेपी ने ठेका ले रखा था, वो सारा का सारा वोट जो है कांग्रेस को पड़ा है। और एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ दिनेश जी, मैं सुन रहा था आपके यहाँ डिबेट, दूसरे चैनल पे भी डिबेट आ रही थी कि ये जो सारा अकालियों ने या बीजेपी ने वोट डलवा दिया। मैं नहीं समझता कि ये आज इस पोजीशन में थे भी ये इनके कहने से कोई वोट किसी को पड़ जाए या इनके कहने से वोट डाइवर्ट हो जाए। लोगों ने अपने मन से, क्योंकि जो शहरी वर्ग था, चाहे वो छोटा व्यापारी था, चाहे शहर में रहने वाला काम करने वाला परिंदा था, वो इस धक्केशाही से, इस किस्म की बदमाशी, गुंडागर्दी, कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, उन सारों से परेशान हो के वो आज निदान चाहता था, अपना एक सही माहौल में जी सके, इसलिए उन्होंने वोट कांग्रेस को डाला। और मेरा मानना है कि जैसे ये जो भी 62, 71 या 55 सीट से नीचे तो कोई भी सर्वे आपका नहीं जा रहा, मेरा मानना है कांग्रेस को क्लियर कट मेजोरिटी आएगी दिनेश जी। बाकी तो अब यही अभी 11 तारीख का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है क्यों शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ के खिलाफ, जो आप भी कह रहे हैं गुस्सा था पंजाब में, क्यों गुस्सा था, और कौन सा जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा इस चुनाव में रहा? देखिए, एक मुद्दा नहीं साहब, इन्होंने कोई कौन सा मुद्दा, इन्होंने जहां भी हाथ लगाएंगे वहीं दर्द मिलेगा। सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि पावन गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हुई वो बड़ा मुद्दा, ड्रग का एक बहुत बड़ा मुद्दा, और उससे भी बड़ा सरकार का जो अहंकार था जी, इन्होंने जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस को रौंदा है। ये जो इन्होंने हल्का इंचार्ज और बिना हल्का इंचार्ज इनके जो भी जत्थेदार थे, एक क्लियर कट पॉलिसी अकालियों की बन गई थी, शकांगे तो शिकावांगे। इन्होंने लूटा पंजाब को, और इनके जो आगे नॉमिनीज थे, जत्थेदार थे, हल्का इंचार्ज थे, जिस तरह पंजाब को लूटा खसूटा, और पुलिस को इनके हाथ में एक टूल बन के रहेगी। ये वोट इसके खिलाफ है। पहले नाराजगी हुआ करती थी, एंटी इनकम्बेंसी को आप नाराजगी कहा करते थे। अब की बार शायद ये रिलीजियस टेंड समझ लीजिए कि जो बेअदबी उसको लेके लोगों में इनके प्रति एक तिरस्कार की भावना है, जिसको आप कह सकते हैं टेंटामाउंट टू ऑलमोस्ट हेट्रेड, इनसे पीछा छुड़ाने के लिए वोट डाला। और ये इवन फॉर मी इज अ सरप्राइज, जो कोई भी सर्वे इनको
डबल डिजिट में नहीं लेके जा रहा। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल इस बात को सर्टिफाई करता है कि ये गुस्सा नहीं था, ये गुस्से से भी आगे एक घृणा की भावना पंजाब के लोगों में थी जो वोट के जरिए उन्होंने निकाली है। जी सुनील जी, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है 11 तारीख के लिए। और हमारे साथ अपना पंजाब पार्टी के संयोजक अध्यक्ष सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर भी हैं। छोटेपुर जी, स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। बहुत मेहरबानी सुभाष जी, बहुत बढ़िया जी। छोटेपुर जी, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं अदर्स की जो सीटें हैं वो ये कहा जाए कि 3 के करीब हैं, आपको लगता है कि आप भी उसमें, आपकी भी एक सीट है उसमें? पॉसिबिलिटी हो सकती है नरेश जी, पॉसिबिलिटी हो सकती है जी। और जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं उसमें 3 तक मैंने जैसा कहा कि अदर्स जो हैं 3 तक सीटें जो हैं अदर्स को मिल सकती है। आप इसको सही मानते हैं? आप क्या इस एग्जिट पोल के साथ जाएंगे? तमाम जो चैनल्स के और एजेंसीज के ये जो एग्जिट पोल है, हाँ देखो जे सारे का देखिए तो भैया ऐसे है कि दूसरे की बैंस सुनी भी लड़ रहे हैं वो भी अदर ही आते हैं जी। फिर इतने तो मैंने थोड़ा डाउट जापदा जी, अदर दियां वध भी सकती हैं जी। आपको कितनी उम्मीद है अपना पंजाब पार्टी को कितनी सीट्स आएंगी? आपको अगर सही आकलन, आपका आकलन पूछा जाए तो कितनी सीट्स अपना पंजाब पार्टी को आएंगी? मैं समझता हूँ कि 3 से 5 के बीच। 3 से 5 के बीच। और आप पंजाब में 11 तारीख को किसकी सरकार बनते हुए आपको नजर आ रही है? देखो मेरे को तो ऐसे लगता है कि हंग ही आएगी। आपको लगता है कि हंग आएगी? हंग आएगी। अगर आपकी पार्टी की, आपने जैसा कहा 5 तक 3 से 5 सीटें आएंगी और किसी राजनीतिक दल को जरूरत पड़ती है तो आप किसके साथ जाएंगे? हम इतने एडमेंट नहीं है, पंजाब का सोचेंगे, जो अच्छा आदमी पंजाब के लिए अच्छा काम करने वाला होगा उसका साथ दे सकते हैं। हम पंजाब में दोबारा इलेक्शन नहीं चाहते। जी जी। छोटेपुर जी, जी मीडिया से जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है 11 तारीख के लिए। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिल्कुल, बलविंदर बैंस लोक इंसाफ पार्टी के जो नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलविंदर जी, स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। जी नमस्कार, सबको नमस्कार। बलविंदर जी, कितनी आपने मेरे को ऑनलाइन किया। बलविंदर जी, कितनी सीटों की उम्मीद जो है लोक इंसाफ पार्टी पंजाब में कर रही है? लोक इंसाफ पार्टी के पास हैं 6 सीट, 6 की 6 ही जीतेंगे। एग्जिट पोल जो है वो दिखा रहे हैं कि अदर्स को, जिसमें लोक इंसाफ पार्टी भी हो सकती है, 3 सीट तक आ सकती है। तो उसमें आप कह रहे हैं कि आपको उम्मीद है कि लोक इंसाफ पार्टी जो है 6 सीटें जीतेंगी। मैं कह रहा हूँ 6 से 6 सीट जीतेंगे क्योंकि मैंने ग्राउंड पे काम किया है। जी जी। एग्जिट पोल तो कभी एक नहीं हो सकते जी। 2 एग्जिट पोल चल रहे हैं, दोनों पे एक कांग्रेस की सरकार बना रहा है, एक आम आदमी पार्टी की सरकार, एक हमारी बना रहा है सरकार जी। तो जो सरकार पंजाब में बनेगी जी उसमें कोई शंका नहीं है, वो दीवार पे लिखा हुआ है कि वो सरकार बनेगी लोक इंसाफ पार्टी और आम आदमी पार्टी की। तो आप आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी की सरकार बनते हुए आपको दिख रही है पंजाब में? बिल्कुल 100%। अगर आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी जो है सत्ता में आते हैं तो क्या लोक इंसाफ पार्टी से उप मुख्यमंत्री होगा? ये बातें रिजल्ट के बाद की डिसाइड करने की है। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बलविंदर जी। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।
लगातार रुझान जो सामने ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਟੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਅਤੇ ਜੋ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏजेंसियां ਦੇ ਵੱਲੋਂ जो सर्वे किए गए उस दे विच बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल गौरव, एक बार हम फिर ये ब्रेक में जाने से पहले ये आंकड़ा फिर जो है एक बार दर्शकों के सामने रख सकते हैं जिसमें अगर आज तक एग्जिट पोल की बात की जाए तो अकाली दल बीजेपी को 4 से 7 सीटें, कांग्रेस को 62 से 71 सीटें, आम आदमी पार्टी को 42 से 51 सीटें और अदर्स को 2 सीटें। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ MRC ਦਾ ਜੋ ਸਰਵੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, 55 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, 55 ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਅਦਰਸ ਦੀ ਉਹ खाता भी नहीं खुलेगा इस एग्जिट पोल के मुताबिक। बिल्कुल, न्यूज 24 और चाणक्य का जो एग्जिट पोल है उसमें अकाली दल बीजेपी गठजोड़ को 9 सीटें, कांग्रेस को 54 सीटें और आम आदमी पार्टी को भी 54 सीटें और अदर्स को 2 सीटें। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਸੀ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਮਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, 41 ਤੋਂ 49 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 59 ਤੋਂ 67 ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਦਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 3 ਤੱਕ ਹੀ ਜੋ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ।